ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون بھائی؟ بھائی میں فردین بول رہا ہوں ممبئی سے۔ فردین بھائی، ہاں بتائیں بھائی۔ بھائی وہ لوگوں نے بھائی تھوڑا اسپیڈ میں بولیے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا، یا تو اگر آپ کو لمبی بات کرنی ہو تو بعد میں کال کیجیے، اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو چھوٹی ہے بات نہیں بھائی، ہاں۔ وہ لوگوں نے فتنہ مچایا ہے کہ صوفی کلیم رضوی صاحب نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تم سب حنفی طریقے میں نماز پڑھو، اور ہم لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی لوگ حنفی طریقے میں نماز پڑھو، یہی حق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صوفی کلیم رضوی جی، یہ جو بریلی کے جو ہاں جانتے ہیں، ان سے بات میری ہو چکی ہے 2-3 بار تو۔ جی وہی بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور بولے ہیں کہ ارے تو بھائی ان کو فون کر کے پوچھو نا میرے بھائی، میرے خواب میں تھوڑی نہ آئے تھے۔ نہیں تو بھائی آپ بتا دیجیے کہ یہ صحیح ہے حنفی طریقے ہی میں نماز پڑھنا، تو یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے نماز کے طریقے کے تعلق سے بھائی دیکھیے، اب مطلب یہ خواب مطلب کس نے دیکھا؟ صوفی کلیم صاحب نے دیکھا؟ جی جی جی۔ کب دیکھا؟ یہی تو کل یا پرسوں کا بریکنگ نیوز ہے، سامنے ہی کا بتایا نہیں ہے، پر بول رہا ہے کہ دیکھے ہیں، آپ بولے کہ یہی حق ہے۔ نہیں ابھی اصل میں ہمارے ایک بھائی وہ گروپ ہے نا آڈیو والا، اس میں ایک بھائی وہ طلحہ بھائی ہیں، جی جی، تو انہوں نے بھی ابھی ایک شام کو یہ آڈیو ڈالی تھی، تو انہوں نے بھی مطلب بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو میرے کو انہیں سے پتا چلا، میرے کو معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو ان سے بات بھی نہیں کرتے صوفی کلیم سے۔ تو بھائی کیا وہی حق ہے؟ ہم لوگ جس طریقے میں پڑھتے ہیں کیا وہ غلط ہے؟ ارے میرے بھائی ایسے خواب کے ایک چیز بتائیے بھی، خواب کے معاملے میں آپ کو کوئی بھی بتا دے گا آپ دین اسلام چھوڑ دو گے؟ یہ بتاؤ، ابھی ہم خواب میں دیکھ لیں کہ ہاں بھائی یہ اسلام چھوڑ کے ہندو بن جاؤ تو کیا سب ہندو بن جائیں گے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ان کے خواب میں بھائی دیکھیے بھائی فالتو بکواس کرنے کا ٹائم نہیں ہے اللہ کے بندے۔ دیکھیے آپ کو مسئلہ ہم شارٹ فارم میں ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی۔ اور سننا ہے، اگر آپ نے واقعی بھائی وہ سمجھنے کے لیے فون کیا تو سمجھائے دے رہے ہیں، اور اگر آپ کو بحث کرنا ہے تو میرے بھائی آپ بعد میں کال کیجیے گا نماز کے بعد۔ کیا کریں آپ بتائیں؟ نہیں آپ بتا دیجیے، سننا ہی ہے۔ ہاں کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی آپ؟ ممبئی، فردین بھائی۔ اچھا فردین بول رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھیے فردین بھائی، اصل مسئلہ جو یہ ہے نا میٹر، دیکھیے اب سب سے پہلی چیز تو آپ کو بتا دیتے ہیں، اب یہ خواب کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے خواب میں واقعی دیکھا یا وہ بھائی اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے کو نہیں معلوم بھائی میں کسی کے اوپر الزام میں نہیں لگا سکتا، لیکن اب دیکھیے پہلی چیز تو یہ آپ کو بتا دے رہے ہیں، جب انسان کے پاس بھائی یہ قرآن حدیث جب وہ ان سے اپنے مسلک کو ثابت نہیں کر پاتا ہے تو جو بھائی وہ ڈوبتا ہوا جو بھائی انسان ہوتا ہے نا، اس کو ایک تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تو جو یہ خوابوں والی بات ہوتی ہے نا، یہ ایک تنکا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو بتائیں کہ جس کا مسلک ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ قرآن حدیث سے اپنے بھائی وہ باطل مسلک کو بھائی وہ بچانے میں ناکامیاب ہو جاتا ہے، وہ فوراً ایک اسٹوری بھائی وہ پبلک میں بھائی وہ اوپن مطلب بتا دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا۔ اب جیسے آج سے 2 سال پہلے بھائی میرے کو یاد ہے غالباً بھائی میں وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں پہ ایک بچہ تھا وہ پمپلیٹ بانٹ رہا تھا، اور پمپلیٹ میں نے بھائی اس سے بھائی وہ لے لیا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے بھائی کوئی کوچنگ کا ہو، کیونکہ میرے کو اس سمے بھائی وہ کوچنگ کرنی تھی، ٹھیک ہے بھائی، فزکس کی، کیمسٹری کی، میتھ کی، تو میں نے سوچا بھائی اکثر بانٹتے نہیں ہے مسجد کے باہر اسکولوں کے باہر پمپلیٹ، تو میں نے پمپلیٹ اس کا والا لے لیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ تو پمپلیٹ میں نے جب بھائی وہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک مطلب بھائی وہ انسان تھے، شخص تھے، اب وہ مطلب اسٹوری تو بہت بھائی وہ پورے مطلب پڑھنے کی تھی، آپ کو شارٹ فارم میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہوتے ہیں وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، وہ مطلب بھائی وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگ نماز بہت چھوڑ رہے ہیں، لوگوں سے کون نماز پڑھے، اور لاسٹ میں بھائی اترا ہوا تھا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم اس پرچے کو اور 1000 لوگوں میں بانٹو۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ کل ملا کے یہ تھا کہ 1000 پرچے چھاپنے ہیں، کیونکہ اب تم نے پڑھ لیا ہے اور تم نے قسم بھی اللہ کی کھا لی ہے، تو اب 1000 پرچے تمہیں چھاپنے ہیں، تو اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ یہ سب فوٹو کاپی والوں کی چال تھی، ٹھیک ہے، اور جو بھائی یہ جو پرنٹنگ پریس والے ہوتے ہیں ان کی چال تھی،
कि उनका धंधा चले। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जो अक्सरियत मुसलमानों की है भाई वो जाहिल है जी वो अल्लाह के नबी की ख्वाब की बात को तो फौरन मान लेंगे, लेकिन जो अल्लाह के नबी की जो हकीकी बात है, जो साबित शुदा बात है, उसको कभी नहीं मानेंगे। लेकिन ख्वाब में अल्लाह ताला ने बताया तो जरूर भाई अच्छी बात बताई होगी, और अपनी जिंदगी में जो बात बताई है उससे अमल करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। तो ये मुसलमानों का अकीदा बहुत खराब है। जी अब आजकल देखिए ये डूबते हुए तिनके को सहारा बन के ख्वाब देख रहे हैं। अब जैसे भाई ये तारिक जमील है, उन्होंने तो अल्लाह के नबी को कम से कम 5-6 बार भाई ख्वाब में देखा है। ठीक, मतलब कुछ भी होता है अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में आ जाते हैं। ठीक, अभी भाई वो एक कोई मतलब भाई अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी भाई वो मतलब भाई उनको वो आला से आला भाई वो मकाम दे जन्नत में। ठीक है, वो शायद गालिबन उनका नाम वो क्या नाम था वो अरे जिनका भी वो एरोप्लेन से मतलब एक्सीडेंट हो गया था प्लेन में, हाँ जुनैद जमशेद साहब। ठीक है, तो उनके बारे में भी एक न्यूज आई थी कि मतलब वो तारिक जमील साहब के मतलब किसी दोस्त ने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा और उन्होंने कहा कि तारिक जमील को बता देना कि हाँ मतलब भाई वो मतलब साथ खैरियत के पहुंच गए हैं। ठीक है, जुनैद जमशेद साहब। तो ये ख्वाबों का सिलसिला जो है ना, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जी जी अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम हो रहा है मेरे पास। जी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी शख्स हो, चाहे वो सूफी कलीम रिजवी हो, चाहे वो तारिक जमील हो, चाहे आपकी मस्जिद के इमाम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपकी कोई भी हो, ख्वाब में अगर वो अल्लाह के नबी को देखता है तो वो वाकई अल्लाह के नबी होते हैं। क्योंकि हदीस में आया हुआ है कि अल्लाह के नबी की जो भाई वो चेहरा है, शक्ल है, वो शैतान कभी नहीं ले सकता। आप समझ रहे हैं? तो इसी चीज का फायदा लोग उठा लेते हैं कि वो अल्लाह के नबी का नाम बताते हैं, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड एक भाई वो एक मतलब बात रहती है कि हाँ देखो मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी है, तो वो अल्लाह के नबी थे, वो शैतान नहीं थे। क्योंकि शैतान तो कभी अल्लाह के नबी का चेहरा ले ही नहीं सकता है। तो इस चीज का फायदा उठा के लोग लोगों को कहते हैं। अब आते हैं आपके मेन सवाल पे, जो आपने कहा कि सूफी कलीम रिजवी साहब हनफी बरेलवी ने एक मतलब ख्वाब देखा कि मतलब वो अल्लाह के नबी आते हैं और कहते हैं तुम हनफी जो स्टाइल है, तरीका है, मेथड है, उसके हिसाब से नमाज पढ़ो, सही है जी। तो तुम लोग जो पढ़ते हो वो गलत है। हाँ नहीं ये तो भाई हक यही है कि जो पढ़े, जो ख्वाब में देखा गया है नहीं है। देखिए ख्वाब असल में देखिए ख्वाब से भाई जो हमारा दीन इस्लाम है, शरीयत कानून है, उसमें कोई भाई वो रद्दो बदल नहीं होगा। जो ख्वाब है भाई वो दीन इस्लाम के लिए भाई वो हुज्जत नहीं है। अब कोई चीज ना तो ख्वाब भाई ख्वाब में कोई चीज देखने से ना तो हम दीन इस्लाम में डाल सकते हैं, ना ख्वाब में देख लेने से किसी चीज को दीन इस्लाम से हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन जो इनका ख्वाब है भाई वो हदीस के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में 1438 साल पहले गालिबन उन्होंने ओपन फरमाया था, बुखारी की हदीस है, आम हदीस है बिल्कुल, कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो, यानी कि जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी है वैसे नमाज पढ़ो। अब अगर अल्लाह के नबी आके किसी के ख्वाब में कह रहे हैं कि हनफी तरीके से नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब जो वो भाई अपनी जिंदगी में हदीस बता के गए हैं भाई वो जो क़यामत तक के लिए, इसका मतलब कि वाली हदीस मनसूख हो रही है। जी भाई, सही बुखारी में तो हदीस है ना, हदीस नंबर 631, सल्लू कमारी यही थी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते। बेशक भाई सही बात है। तो अल्लाह के नबी एक तरफ अपनी जिंदगी में तमाम सहाबा से कह रहे हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, और अब अगर कोई कह रहा है कि नहीं अल्लाह के नबी ने कहा है कि हनफी तरीके से नमाज पढ़ो, तो हम हदीस को मानेंगे, हम ख्वाब को छोड़ देंगे। ठीक, क्योंकि ये ख्वाब सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी कभी कोई ऐसी बात ख्वाब में नहीं कहेंगे जो कुरान हदीस से टकराए। इस चीज को आप मान लीजिए, ये सच्चे ख्वाब और झूठे ख्वाब इनमें फर्क करने का ये पैमाना है। तो हो सकता है उन्होंने अपनी डूबते हुए मसलक को बचाने के लिए जब उनके पास कुरान हदीस और अमले साहबा की दलील खत्म हो गई, तो उन्होंने ये ख्वाब का जो तिनका है उसको बीच में लेके आके उन्होंने इस चीज को भाई वो रख दिया। ठीक, और ख्वाब देखना तो भाई इनके वहाँ आम हो गया, हनफियों के यहाँ, यहाँ तक कि भाई वो दुर्रे मुख्तार में आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 100 बार अल्लाह को भाई वो ख्वाब में देखा। अब बताइए
भाई जब अल्लाह को इंसान ख्वाब में देख रहा है तो जो भाई जो हनफियों के मानने वाले वो अल्लाह के नबी को देख लिया तो कौन सा बहुत बड़ा भाई तूफान आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या भाई ये मतलब ये ख्वाबों की हकीकत है, ये एक बिजनेस बन गया है, धंधा बन गया है। ख्वाबों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। ख्वाब कोई मतलब हुज्जत नहीं है, शरीयत नहीं है कि ख्वाब आ गया है। और ख्वाब अगर आ भी गया है तो हम कैसे माने कि भाई ये ख्वाब सही है। बात तो ये है, अभी मानिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। अब मैं मतलब ये माशरे में फैला दूं कि मैंने ख्वाब में देखा है, आज से 2 दिन पहले रात को मैं सो रहा था, गहरी नींद में था और मैं व्हाट्सएप यूज करते करते मैं रात को 2 बजे सो गया और करीब रात को मैंने 3:30 बजे ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी भाई अफ्फू खान के ख्वाब में आए और अफ्फू खान ने उस ख्वाब में देखा कि ये सूफी कलीम रिजवी हनफी साहब को भाई वो फरिश्ते लोग भाई वो जामे कौसर से मार मार के हटा रहे हैं जी। भाई जामे कौसर से मार मार के हटा रहे हैं और अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं क्यों क्यों मार रहे हो इसको आने दो। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके जाने के बाद इसने दीन में नई नई चीजों का इजाद कर दिया जी। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इसको, मेरी आंखों से दूर हटाओ, ले जाओ इसको मेरे सामने से। और ये ख्वाब अगर मैं बयान कर दूं पब्लिक में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्वाब तो हदीस से साबित है, भले ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कोई ख्वाब देखा नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर मैं इस ख्वाब को चाहूँ तो साबित कर सकता हूँ कि भाई जो ये मेरा ख्वाब है ये तो सच्चा ख्वाब है क्योंकि हदीस से साबित है। भाई जब अल्लाह के नबी भाई वो जामे कौसर पिला रहे होंगे तो भाई वो कुछ लोग आएंगे उम्मती लोग जिनको फरिश्ते लोग मार मार के हटा रहे होंगे। अल्लाह के नबी कहेंगे क्यों इनको हटा रहे हो, तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजें इजाद की, बिदअतें किया। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरी आंखों के सामने से। तो मेरा ख्वाब तो बिल्कुल एकदम भाई वो फिट बैठ रहा है और सूफी कलीम रिजवी हनफी को भाई बिदअती अल्हम्दुलिल्लाह फौरन साबित कर देंगे क्योंकि तीजा 40वां छठी चिल्ला फातिया खानी यासीन खानी कुरान खानी और भाई ये चोंगे और सवाल मतलब वो 1.25 लाख बार या सलामो पढ़ना, इमली के बीज के ऊपर चिया पढ़ना और खजूर के बीज पे फला पढ़ना, तो ये सब बिदअतें तो हैं। तो बिदअती साबित करने में हमें टाइम नहीं लगेगा और ख्वाब तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित है ये पहले से। तो अगर देखिए अगर ख्वाबों से अगर किसी को हराना है और ख्वाबों से अपने आप को सही साबित करना है तो ख्वाब हम भी देख सकते हैं। आप बात को समझिएगा। अगर कोई इंसान भाई वो अल्लाह के नबी के तरीके की नमाज को नीचा करने के लिए अल्लाह के नबी का सहारा ले रहा है तो हम भी अल्लाह के नबी का सहारा भाई हम ले सकते हैं और जो बिदअती उनको बिदअती साबित कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास कुरान हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हम उससे सामने वाले को बातें साबित कर देंगे। तो हम ख्वाबों का झूठा सहारा क्यों लेंगे, क्योंकि जिसने भी जानते वो उससे अल्लाह के नबी पे झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो हम क्यों झूठा ख्वाब बयान करें। तो अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि नहीं सूफी कलीम हनफी साहब ने ख्वाब में देखा है कि हनफी तरीके से जो भाई तुम नमाज पढ़ना यही सही है, तो भाई देख लीजिए, उससे आप साफ साफ कह दीजिए कि ये ख्वाब भाई ये हदीस के खिलाफ है क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। तो अल्लाह के नबी कभी भी अपने फरमान के अलावा कोई दूसरा फरमान कभी नहीं देंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी ने मतलब वो हनफियों की भी तरीके से भाई वो नमाज पढ़ी और शाफई के भी तरीके से पढ़ी और मलकी के भी तरीके से नमाज पढ़ी और हम्बली के भी तरीके से पढ़ी, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, अल्लाह का दीन एक है, अल्लाह की इबादत का तरीका भी एक है और अल्लाह के नबी ने ठीक है आखिरी जमाने तक ठीक नमाज में रफुलदैन किया। अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, अल्लाह के नबी ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए कहा। तो जो जो जैसे नमाज आज के दौर में हम पढ़ते हैं मोहम्मदी नमाज, वैसी ही नमाज ता कयामत तक चलेगी। अब कोई ख्वाब में अभी मानिए कोई शाफई आलिम, भाई अब ख्वाबों का तो बिजनेस बन गया है। अभी कोई शाफई आलिम ख्वाब देख ले, क्या मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी आए, उन्होंने कहा शाफई तरीका ही नमाज पढ़ने का सही है, तो अब क्या करेंगे हनफी लोग। अब कोई मलकी आलिम है, हम्बली आलिम है, अब वो अपने ख्वाब में देख ले कि हाँ देखो अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने कहा था हाँ तुम लोग मलकी तरीके से नमाज पढ़ो, तुम लोग नमाज में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो, ये बिल्कुल सही है।
तो ऐसे तो सब लोग ख्वाब देख देख के पूरी शरीयत ही चेंज कर देंगे। जी जी बेशक। तो ख्वाबों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ख्वाब सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, और अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखना। और भाई दूसरी चीज है कि सूफी कलीम रिजवी साहब से अगर मेरी बात हो जाएगी तो मेरे को उनसे एक खाली छोटी सी चीज पूछना है कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में देखा तो अल्लाह के नबी की जो दाढ़ी थी भाई वो कैसी थी? जी भाई उनकी दाढ़ी मतलब भाई वो एक मुश्त से भाई वो ज्यादा थी या एक मुश्त से भाई कम थी? तो सब भाई ये उम्मत का इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि भाई उन्होंने तो ख्वाब में अल्लाह के नबी को देख लिया, तो फालतू लफड़ा काहे के लिए करना? जी भाई बहुत बहुत ठीक है भाई जी। और कोई भी परेशान आपको करे उससे कह दीजिए भाई किसी का ख्वाब हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अब जो ख्वाब बयान कर रहा है वो कोई मोतिबर भाई कोई वो सिक्का तो है ही नहीं, ठीक। अब वो बरेलियों में मान लीजिए 100% लोगों में उनको 40% लोग मानते होंगे, 60% लोग उनको नहीं मानते होंगे, आधे से ज्यादा लोग उनको जानते नहीं होंगे, आधे से ज्यादा लोग जानते होंगे। तो जब वो भाई कोई मोतबर इंसान कोई कहे कि ख्वाब में देखा, और ख्वाब हमारे लिए हुज्जत नहीं है मेरे भाई, हम फिर वही चीज कहेंगे। और ख्वाब में अगर उन्होंने ये देखा है कि हाँ जो हनफी तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं वो सही है, तो मैं भी एक ना एक दिन ख्वाब देखूंगा कि अल्लाह के नबी के सामने भाई वो जामे कौसर से सूफी कलीम रिजवी हनफी को फरिश्ते लोग मार मार के हटा रहे हैं। तो ये ख्वाब मैं भी भाई मैं पब्लिक के बीच में आके कहूंगा तो लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ख्वाब सबके माने जा रहे हैं तो मेरे भी माने जाएंगे। और मेरा तो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से साबित हम कर देंगे कि हाँ जो हदीस में हुआ वैसे ही मेरे ख्वाब में हुआ। लेकिन इनका ख्वाब तो हदीस को उलट हो रहा है, हदीस कह रही है उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे बातें देखते हो, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नहीं तुम हनफी स्टाइल से नमाज पढ़ो। तो ठीक है अब रखते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं भी भाई तहकीक करता हूँ कि हाँ आखिर ये माजरा क्या है मेरे भाई ख्वाब आपका। नई नई चीजें हमें पता चल रही हैं भैया। अगर बात हो तो जी सूफी कलीम रिजवी से तो भेजे हमको ऑडियो देखें क्या बोल रहे हैं भाई। मैं उनसे बात मैं नहीं करता हूँ भाई, अगर उनका फोन आएगा तो मैं बात कर लेता हूँ, वरना मैं उनको फोन नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई एक चीज बता दें बद कलामी मेरे को पसंद नहीं है। और ठीक है जब मेरे से बात करते हैं तो अरबी का जिन जाग जाता है, अपनी आवाम में जब बात करते हैं तो बराबर हिंदी उर्दू में बात करेंगे, लेकिन अहले हदीस का बच्चा भी आ जाएगा तो अरबी का जिन जाग जाएगा। तो मेरे को ऐसे से बात नहीं करनी है। और ख्वाब मेरे भाई इन लोगों ने ख्वाबों के जरिए मतलब लोगों को अफजल कर दिया है, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया है कि आपने ख्वाब में अल्लाह को 100 बार देखा माज़अल्लाह। अब बताइए अल्लाह को इनके इमाम ख्वाब में देख रहे हैं, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा। लेकिन उनके जाने के बाद सैकड़ों सालों बाद भाई उनके नाम से उतार दिया गया। जी आप बात समझ रहे हो? तो ख्वाब देखना लोगों की आदत हो गई है। जो भी मतलब कोई मतलब देखिए एकदम इजी स्टाइल बन गया आजकल का कि हाँ कौन इतनी मेहनत करे, तहकीक करे, कौन कुरान भाई वो कुरान हदीस का हवाला दे, सीधे माशरे में एक बात भाई वो फैला दो कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने फला फला कहा, तो भाई वही दीन बन जाता है। ऐसा थोड़ी ना है। अल्लाह के नबी को जो कहना था, जो बताना था, वो अल्लाह के नबी ने सब कुछ बता दिया। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि बताओ साहबा मैंने तुम तक सारी बातें पहुंचा दी, सारा दीन पहुंचा दिया। तो साहबा ने कहा कि हाँ पहुंचा दिया। और अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ भाई वो शहादत की उंगली को उठा के कहा अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, है अल्लाह तू गवाह रहना, है अल्लाह तू गवाह रहना, है अल्लाह तू गवाह रहना। तो अल्लाह के नबी ने पूरा दीन पहुंचा दिया है। अब ये थोड़ी ना कि बचा कुचा दीन है, अब अल्लाह के नबी सबके ख्वाब में आके पहुंचा रहे हैं। जी माज़अल्लाह। जी ठीक है भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।